So earlier what we have done, we have done the non-degenerate perturbation theory. And here we will try to do what? Degenerate perturbation theory. So what is difference between non-degenerate and degenerate perturbation? The difference between degenerate and non-degenerate perturbation is that the eigenvalue of H naught, the original Hamiltonian, will be non-degenerate into non-degenerate perturbation. And the eigenvalue, and if you have a degenerate eigenvalue, then obviously you have to go for degenerate perturbation theory. So again, this is the whole theory is based on Taylor expansion, and we just to try to manage the degeneracy part with some proper algorithm and some proper rules. So I am not going to the derivation part. What I am trying to just tell you how you have to approach for the degenerate perturbation. The whole idea is that we have to see the H naught matrix, and once we will see the H naught matrix, then we have to diagonalize our perturbed matrix. And once we have diagonalized our perturbed matrix and we know that our H naught matrix, and then we can easily find the energy eigenvalue for the complete system. So this is the whole idea behind this. So what we have to do, we have our H, and this H is nothing but H naught plus lambda W. The whole idea is that we have to write this W in a basis in which H naught is diagonalized. This is the most important thing. So the first thing what we have to do, first thing we have to just diagonalize H naught. So we all have this particular value, H phi n is equal to En phi n. And here you can have degeneracy in your eigenvalue, and then you can have another eigenvector, something like H phi m is equal to, and you can write En. I can give some new notation. Let's say what I can give you, because it is diagonalized matrix. Sorry, it is degeneracy is there. So G n, and you can write something like this. Phi m is also given you En G phi m, something like this. So obviously this thing, and G will be just tell you all about the degeneracy, how many degeneracy is there. Okay, so this is your degenerate eigenvalue, and G is all about the degeneracy. So you can just remove this G also, because it will unnecessarily create the problem. So you have H phi n is equal to En phi n, H phi m is equal to En phi n. So what we have En eigenvalue, and we have eigenvector phi n as well as phi m. So this is the story. So what we have to do, first we have to diagonalize H naught. So the first step, we have to diagonalize H naught, and we can write H naught D. In general, most of the problem H naught will be diagonalized, so there is not a big issue. But maybe sometime H naught may not be diagonalized. ऐसा भी possible हो सकता है कि H naught diagonalized नहीं है. So don't worry, if H naught is not diagonalized, then you have to diagonalize H naught. And the second thing, you have to find W dash. And what is this W dash? W dash is all about phi n, and this is your W dash is the matrix W in basis of eigenvector in which H naught is diagonalized. So W dash is the basis vector, is the matrix in which we will write W in a basis in which H naught is diagonalized.
किसके बेसिस में W डैश निकालेंगे? जिसके बेसिस में H नॉट डायगोनलाइज होगा. सो व्हाट विल बी मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ W डैश? द मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ W डैश is phi n, and this will be nm phi n W phi n. Now here I can claim W dash is equal to W if H naught is diagonalized. Why W dash is equal to W if H naught is diagonalized? क्यों होगा ऐसा? Why it is going to happen? अगर H naught diagonalize है, then W dash is W, nothing else. Why this is going to happen? Anyone? बताइए. अगर H naught diagonalize है, then W dash is actually W. Why this? Anyone? Because what we have, because you have Identity matrix. very good. So because the eigenvector, if H naught is diagonalized, then eigenvector of H naught can be written as 1 0 0 0 1 0. Suppose I am talking about 3 cross 3 matrix, then this will be this kind of thing. So then you have a some U matrix. How you will diagonalize anything? You are just write some U matrix, some unitary matrix, or some transformation matrix in that basis you are going to diagonalize. Then here U matrix is 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So this is your U matrix, and if you are going to write your W dash in basis of U, so what will be your W dash? W dash is equal to U inverse WU, and that value is equal to W. So if H naught is diagonalized, it is very natural that W dash will be W, because the basis matrix will be written as a identity matrix. किसी ने अभी बिल्कुल सही कहा था. But if W dash is not, suppose if H naught is not diagonalized, then your U matrix will be some another matrix, and then you will, when you are going to write your W dash, that may be different than W. So you have to always take care of this particular thing. So in which basis you are going to diagonalize H naught? किस बेसिस में H naught को आप diagonalize करोगे? बताओ. फर्स्ट ऑफ ऑल H naught को किसके बेसिस में diagonalize करोगे? So that you 1 0 0. नो, ये तो यहाँ पर 1 0 0 तो एक पर्टिकुलर मैंने एग्जांपल दिया है. आप H naught को किसकी बेसिस में diagonalize करोगे अगर ये diagonalize नहीं है तो? Very good. Eigenvector of H naught. Very good. So you will diagonalize H naught in a basis of eigenvector of H naught. Okay. So ये आप हमेशा ध्यान में रखोगे. So you have to write that H naught diagonalize is actually written in a basis of eigenvector of H naught. Okay. So U मैट्रिक्स जो है वो आइगन वेक्टर ऑफ H naught के बेसिस में लिखा जाएगा. ठीक है. एंड नाउ अब W डैश को किसके बेसिस में लिखोगे? बताओ. W डैश को किसके बेसिस में लिखोगे? जिसकी बेसिस में H naught डायगोनलाइज है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो किसकी बेसिस में H naught डायगोनलाइज है? H naught के आइगन वेक्टर्स. आइगन वेक्टर्स के बेसिस में. तो फिर हम W डैश को किसकी बेसिस में लिखेंगे एक्चुअली?
आइगन वेक्टर्स के। आइगन वेक्टर ऑफ एच नॉट। सो डब्ल्यू डैश को भी आप आइगन वेक्टर डब्ल्यू डैश विल बी W dash is a matrix where W is written in a basis of eigen vector of H naught, है ना? सो W डैश को आप जब लिख रहे हो तो W डैश किसके बेसिस में लिखेंगे? आइगन वेक्टर ऑफ H नॉट, क्योंकि उसी के बेसिस में क्या होगा? H नॉट डायगोनलाइज होगा। ओके, नाउ क्या आप गारंटी दोगे W डैश हमेशा डायगोनलाइज हो? H नॉट तो आपका डायगोनलाइज होगा, क्या आप गारंटी दोगे कि W डैश इज ऑलवेज डायगोनलाइज? बताइए। नो, you cannot give guarantee that W dash is always diagonalized. It may be diagonalized, it may not be diagonalized. So आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि W dash is not always diagonalized. So W dash is not always diagonalized. Sir, the statement written in that right hand side, ये वाला, extreme right, ये, yes, हाँ बताओ। इसमें W है या W डैश है वो? W dash is a Is मैट्रिक्स। W dash आपको मैट्रिक्स मिलेगा, आउटकम है। Yes. किसका आउटकम है? जिसमें W को आप किसके बेसिस में लिख रहे हो? आइगन वेक्टर ऑफ H नॉट के बेसिस में। W, ओके। ठीक है। सो W डैश यहां देखो ना लिखा है फाई एन W फाई एन, है ना? किसके बेसिस में लिखा है इसे? इसके मैट्रिक्स एलिमेंट यहां दिख रहा है ना। व्हाट इज फाई एन? फाई एन और एम कर लो आप यहां पर, एन और एम किसके बेसिस में लिख रहे हैं? ये आइगन वेक्टर्स ऑफ H नॉट। सो आइगन वेक्टर ऑफ H नॉट के बेसिस में लिखेंगे, एंड देन यू विल फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ W डैश and you will get the answer. That will be the perturbation. What is final step? The final step is find eigen value of W dash. Find eigen value of W dash. Okay. आप eigen value of W dash निकालोगे and then it is first order correction. First order correction. Okay. It is identified as what? First order correction. Everyone is comfortable here? Clear है? So basically हम लोगों को 3 तरह के प्रॉब्लम्स करोगे। So फर्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग करेंगे जिसमें H नॉट आपका डायगोनलाइज है, बट W डैश आपका डायगोनलाइज नहीं होगा। ओके, और फिर आप क्या करोगे? W डैश के आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालोगे। मेनली आप W डैश को डायगोनलाइज करोगे, और जब आप डायगोनलाइज करते हो तो फिर डायगोनल टर्म में क्या आ जाता है? आइगन वैल्यूज। सो यहां जब आप आइगन वैल्यू निकालोगे सो दैट विल बी इन द डायगोनल टर्म। सो बेसिकली फाइनली आप एक तरह से फाइनली वन शुड डायगोनलाइज W डैश। ओके, सो देखो बेसिकली पूरी स्टोरी क्या है? पूरी स्टोरी ये है कि सबसे पहले H नॉट को और W डैश को सेम बेसिस में लिख दें। वो कौन सा बेसिस होगा? आपको बेसिस तो चूज करने का आपका अधिकार है। तो आप कौन सा बेसिस चूज करोगे? आइगन वेक्टर ऑफ H नॉट। आइगन वेक्टर ऑफ H नॉट। क्यों उसे चूज करोगे? क्योंकि उस बेसिस में H नॉट क्या होगा? वो डायगोनलाइज हो जाएगा। ठीक है। सो पहला काम क्या किया हमने? दोनों को सेम बेसिस में लिख दिया। और दूसरा काम क्या करेंगे? W डैश को डायगोनलाइज कर देंगे, एंड वंस यू विल डायगोनलाइज W डैश देन you will easily calculate the eigen value from your diagonal term. एक ही चीज है, आइगन वैल्यू निकालो।
या उसे डायगोनलाइज करो, बोथ आर द सेम थिंग। क्लियर हो गया? बट ये आपका ज्यादा बेटर क्लियर होगा जब हम इसे प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम करेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज दैट, पहली चीज हम क्या करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि एच नॉट आपका डायगोनलाइज है लेकिन डब्ल्यू डायगोनलाइज नहीं है। दिस इज योर फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जिसमें आपका एच नॉट डायगोनलाइज नहीं है और डब्ल्यू डैश भी डायगोनलाइज नहीं है, लेकिन जिसकी बेसिस में आप एच नॉट को डायगोनलाइज करते हो उसी के बेसिस में डब्ल्यू डैश भी डायगोनलाइज हो जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। आर गेटिंग माई पॉइंट? और थर्ड क्या करेंगे, जिसमें आप एच नॉट डायगोनलाइज होगा, पहले एच नॉट को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे, फिर डब्ल्यू डैश को भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे, एंड देन यू विल यूज द डिजेनरेट परटर्बेशन। एंड लास्ट पार्ट is that where your non-degeneracy and degeneracy will be mixed, will give you some mixed picture। तो वहां पर क्या होगा वो आपको देखना होगा। ओके, एवरीवन इज कंफर्टेबल? क्लियर है ये? चलो, सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर सम बेसिक प्रॉब्लम, है ना? एक एक करके कुछ कुछ प्रॉब्लम हम करना शुरू करते हैं। So what is my Hamiltonian? My Hamiltonian is, let's say, E naught 0 0 E naught. This is my Hamiltonian, and plus we have lambda 0 V naught 0. Okay, so here you can see this is 2 cross 2 matrix, and you can easily see this is your doubly degenerate 2 cross 2 matrix, और ये कैसा है? doubly degenerate. Now your H naught is diagonalized or not diagonalized? H naught is diagonalized. So what is your eigenvalue? Your eigenvalue is E naught, and what is corresponding eigenfunction? Your corresponding eigenfunction is phi 1 1 0 and phi 2 0 1. So this is identity matrix. You can easily find 1 0 and 0 1. So this is your H naught. So your H naught is actually H naught D. So this value is equal to what? E naught 0 0 E naught. ये आपने first value देख लिया. Now second thing, what will be your W dash? Your W dash will be same or different? W dash आपका क्या होगा? सेम होगा या डिफरेंट होगा? बताओ। सेम होगा। सेम होगा। क्यों सेम होगा? बिकॉज एच नॉट आपका क्या है? डायगोनलाइज। H naught is your diagonalized matrix, so it will be same. So your W dash is equal to W, and you have 0 V naught 0. Okay, 0 V naught 0. So this is your W dash. Okay, clear है ये? Next आपको क्या करना होगा? You have to diagonalize this particular W dash. So what is your W dash? What is eigenvalue of W dash? If you will calculate the eigenvalue, so easily you can calculate W dash is equal to, or W dash minus lambda तो वहां यूज कर लिया है. So you can easily see the eigenvalue is 0 minus lambda V naught minus lambda. This is, let's say this is lambda p, perturbed lambda. So यहाँ पर आप easily लिख सकते हो. So lambda square minus V naught is equal to 0. So lambda is equal to plus minus V naught. And what will be your eigenvectors? Eigenvector क्या होगा? ये सब मैट्रिक्स तो कर रखे होगे, है ना? Anyway, so 0 V naught 0, and we have A B. You have V naught A B.
So from here, B is equal to A. आप easily solve करोगे, and you have to always make it normalized vector. So phi 1 is equal to 1 by root 2, 1, 1. So this is your phi 1 corresponds to plus V naught. Similarly, you will find 0, V naught, V naught, 0. Let's say A, B minus V naught, A, B. So from here, A is equal to minus B. And your phi 2 is equal to 1 by root 2, 1 minus 1. So you have calculated phi 1, you have calculated phi 2, and what you have to do? You have to diagonalize your matrix W dash. So when you will diagonalize matrix W dash, किसकी basis में diagonalize करोगे? Phi 1 और phi 2 के basis में. So I can write one S matrix, and this S matrix is equal to 1 by root 2, 1 by root 2, 1 by root 2 minus 1 by root 2. And fortunately, we have chosen this S matrix such that it will just behave like a unitary matrix. तो इसका फायदा क्या होगा कि अगर ये unitary matrix है, then S inverse is equal to S. And then your S inverse is equal to 1 by root 2, 1 by root 2, 1 by root 2 minus 1 by root 2. So this is your S inverse. So we have to diagonalize W dash finally. So once we are going to diagonalize W dash, so we have this S matrix. So we will easily use this space, and you have W dash diagonalize is nothing but S inverse W dash S. And when you will calculate this particular thing, अगर आप इसे calculate करोगे, then this value is equal to 1 by root 2, 1 by root 2, 1 by root 2 minus 1 by root 2. And what is your W dash is actually W. So V naught, 0. And you have 1 by root 2, 1 by root 2, 1 by root 2 minus 1 by root 2. So now, कोई बता सकता है ये क्या आएगा value finally? What will be that value? आप होमवर्क में इसे करके रखना, बट बताओ फाइनली क्या आएगा? Anyone? What you will get finally? बताइए. V naught 0 0 minus V naught. Very good. So you will get diagonal term V naught 0 0 minus V naught, isn't it? So you will get this one. Why you will get this one? Because you know this is symmetric matrix and it is diagonalizable. And first is the eigenvector corresponds to V naught, and second is the eigenvector corresponds to minus V naught. So accordingly, you will get this one. So yes, you have H naught diagonalized, you have W dash diagonalized. You can easily find the eigenvalue of the complete system up to first order. So what will be the final answer? The final answer is so what will be your final answer? Your final answer is very nicely, and that value is equal to basically E naught 0 0 E naught plus lambda p, and that value is equal to V naught 0 minus V naught. So what you will get? You will get E naught plus lambda p V naught, and you will get E naught minus lambda p V naught. So what you will see? You will see if this perturbation is not there, you have only one state, and this is actually doubly degenerate. Hence it is doubly degenerate, but hence you have only value E naught as your measurement. Then the degeneracy cannot be break. You cannot identify what will be the eigenvector. So what you are doing, you are giving some perturbation
some disturbance, and that disturbance will split this all thing into two part. इसे पूरी की पूरी तरह से split करेगा दो part में. What will be this particular value? This particular value is equal to E naught minus lambda V naught, and this value is E naught plus lambda V naught. So this is just going to split into two parts. Now you can have eigenvector. You can easily identify what is the eigenvector correspond to this one and eigenvector correspond to this one. So actually the system was 2 cross 2. The system has 2 cross 2 space, but due to degeneracy, we cannot identify that it is 2 cross 2 because there is degeneracy. But once you are giving some disturbance to the system, this degeneracy is going to break, and it is breaking completely because 2 cross 2 space can have 2 cross 2 eigenvector. So what we are doing, we are just having a complete breaking of degeneracy with this particular perturbation. So this is one of the wonderful things. But in the examination, you have to be very much smart. And now you can see that these two numbers are same. So there is not any problem how you will write this S matrix. Isn't it? ये S matrix आप कैसे लिखते हो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अगर आप इसको इधर लिखोगे, इसको इधर लिखोगे तो क्या आएगा? माइनस वी नॉट इधर आ जाएगा, वी नॉट इधर आ जाएगा. Then also answer will be same. So finally, actually आपको क्या करना होगा अगर इस तरह के प्रॉब्लम हो जिसमें H नॉट आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो और उसमें कंप्लीट डिजेनरेसी हो. कंप्लीट डिजेनरेसी का मतलब ऐसा नहीं हो कि कोई नॉन डिजेनरेट है और कोई डिजेनरेट है. If all term are degenerate, then what you have to do? You have to just calculate the eigenvalue of your perturbed Hamiltonian, and just you have to give the answer. Are you getting my point? Exam में आप इस तरह से कर सकते हो. But actually what you have to do? You have to first write W dash, and then you have to diagonalize W dash. This is very interesting. Okay? And diagonalizing means you are getting the eigenvalue in the diagonal term. हाँ बताओ. सर ये S जो है इस केस में ये यूनिटरी लाइक बिहेवियर होगा इसका, या मतलब S को हम जानबूझ करके ऐसा ले रहे हैं कि वो यूनिटरी मैट्रिक्स बने ताकि हमारा काम आसान हो. ओके? लाइक ये तो हमने बेसिस वेक्टर के में लिखा है ना हमने बेसिस नहीं बेसिस वेक्टर. क्वेश्चन फिर से फ्रेम करो. सर जो S है ये S का इनवर्स इसलिए इजी हो गया क्योंकि हमने इसको यूनिटरी की लाइक एग्जैक्टली. अब वो हाँ बताओ फिर. ये S जो है ऑलवेज ऐसा बिहेव करेगा कि इसको मतलब लाइक अगर हम इसको बेसिस वेक्टर के इस टर्म में लिखेंगे कि ऑलवेज यूनिटरी मैट्रिक्स आपको नहीं ये आप चाहो तो उसको इन जनरल हमेशा नहीं करेगा, लेकिन आपको मैट्रिक्स को देख करके आप उसको यूनिटरी मैट्रिक्स की तरह लिख सकते हो, है ना? कैसे यूनिटरी मैट्रिक्स की तरह लिखोगे? देखो ये चीज कॉस थीटा और साइन थीटा के टर्म में लिख सकते हैं ना. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 1/√2 1/√2 1/√2 -1/√2 नहीं लिख सकते क्या? सो यूनिटरी मैट्रिक्स का फॉर्म आपको पता है ना कैसा होता है? सम कॉस थीटा साइन थीटा e टू द पावर i थीटा, इस तरह की चीजें उसमें रहती है. इजंट इट? और इन जनरल आप जो भी क्वांटम मैकेनिक्स में जो आइगन वेक्टर मिलेगा उससे आप यूनिटरी मैट्रिक्स इन जनरल फ्रेम कर सकते हो उसके बेसिस को. ये आपके एक्सपीरियंस से आएगा, आप इसको रट करके नहीं कर सकते हो. ठीक है? ये एक्सपीरियंस है. तो एक्सपीरियंस आपका क्या कह रहा है? फर्स्ट कि आप आइगन वेक्टर हमेशा डायगोनल, आप हमेशा नॉर्मलाइज लो ताकि डिटरमिनेंट उसका क्या हो जाए? 1 हो जाए. ठीक है? दूसरा ये है कि जहां तक हो सके आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करो. और सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का फायदा क्या होगा कि रो को अगर कॉलम करोगे, कॉलम को अगर रो करोगे तो क्या हो जाएगा? चीजें सेम रहेगी, है ना? आप समझ पा रहे हो मैं जो आपसे बात कह रहा हूं? आर्बिट्रली आप एस मैट्रिक्स या यू मैट्रिक्स मत बनाओ. आप एस मैट्रिक्स और यू मैट्रिक्स देख करके बनाओ. तो देखने का मतलब क्या है? क्या क्या देखना चाहोगे? सबसे पहले क्या देखो कि उसके आइगन वेक्टर नॉर्मलाइज है कि नहीं. नॉर्मलाइज करो. दूसरा, किसे पहला लिखना है, किसे दूसरा लिखना है, किसे तीसरा लिखना है, दैट विल डिपेंड्स
ऑन योर एक्यूमेन, वो आपके कॉमन सेंस पर डिपेंड करेगी। तो हमेशा आप कुछ ऐसा लिखोगे कि आपका कैसा मैट्रिक्स मिले, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, ये हम लोग कल की क्लास में करेंगे। सो अगर सपोज करो कि आपके पास 3 वेक्टर आया, 1 0 0 0 1 1 0 1 -1, तो आप एस मैट्रिक्स कैसा लिखोगे? ये तो आपके ऊपर है, किसे पहले लिखोगे किसे बाद लिखोगे, कैसे लिखोगे एस मैट्रिक्स? तो मुझे अगर लिखना होगा तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इसे नॉर्मलाइज करूंगा। नॉर्मलाइज हो गया। दूसरा, अब मुझे एस मैट्रिक्स लिखना है, तो निश्चित रूप से मैं इसे चाहूंगा कि ब्लॉक डायगोनल के फॉर्म में लिख दूं, या फिर मैं चाहूंगा ब्लॉक डायगोनल और सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखूं। तो पहला तो मैं हमेशा ये लूंगा 1 0 0। दूसरा मैं ये लूं या ये लूं, ये बताओ किसे लूं मैं दूसरा, ये वाला लूं या ये वाला लूं? बताओ। सर सेंटर वाला। सेंटर वाला लूं। सेंटर वाला लेने से क्या फायदा होगा? 1/√2, 1/√2। और तीसरा अगर मैं ऐसा लेता हूं तो दैट इज 1/√2 माइनस 1/√2। देखो ये है ना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया। तो अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया तो रो को कॉलम करो, कॉलम को रो करो, बात बराबर है। और आप इजिली इसको एस, यहां पर आप चेक करोगे एस इज इक्वल टू एस इनवर्ट्स है कि नहीं, यू विल गेट दिस थिंग। सो ये एक्सपीरियंस से आता है। सो आपको ज्यादा वेक्टर के लेके खेलने की जरूरत नहीं है, इसी तरह के वेक्टर मेनली इसी पर आपको खेलना है। आर गेटिंग माई पॉइंट? फिजिक्स में हमें वही वही चीज जरूरत है ना जिसका हमें यूज करना है, ठीक है? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन लेते करते हैं और फिर उसे फिनिश करते हैं, ठीक है? अब मैं इसे एच नॉट यही रहने देता हूं और लैम्डा पी ले लेता हूं, वी नॉट वी नॉट वी नॉट वी नॉट। चलो बताओ एच नॉट डी क्या होगा, फटाफट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। एच नॉट डी क्या होगा बताओ? सेम रह जाएगा, दिस इज ई नॉट ई नॉट ई नॉट ई नॉट। चलिए डब्ल्यू डैश क्या होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम बताओ। सर। सेम होगा। तो डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू वी नॉट वी नॉट वी नॉट वी नॉट। अब अगला काम क्या करोगे बताओ, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप? आइगन वेक्टर ऑफ आइगन वेक्टर निकाल लो, आइगन वैल्यू निकालो। तो आइगन वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, वी नॉट माइनस लैम्डा वी नॉट वी नॉट वी नॉट माइनस लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू 0, वी नॉट माइनस लैम्डा होल स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा की वैल्यू यहां से आ जाएगा 2v0 एंड 0। ये तो कई बार आप लोगों ने किया होगा, है ना? तो दिस इज योर आइगन वैल्यू। नाउ अब इसको आप जब डायगोनलाइज करोगे तो किसकी बेसिस में आप इसे डायगोनलाइज करोगे बताओ? किसकी बेसिस में डायगोनलाइज करोगे? सर डब्ल्यू डैश। आइगन वेक्टर ऑफ द आइगन वेक्टर ऑफ डब्ल्यू डैश। सो फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द आइगन वेक्टर ऑफ डब्ल्यू डैश। देखो वी नॉट वी नॉट वी नॉट वी नॉट, यू विल जस्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, सब याद होना चाहिए एक्चुअली। स्मार्ट कैलकुलेशन यही कहता है, याद क्या होना चाहिए, सब नॉर्मल है, ट्रिवियल है। तो यहां से क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू बी आएगा क्या? देखो देखो, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2a, सो बी इज इक्वल टू ए। वी नॉट तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, बी इज इक्वल टू ए मीन्स 5 1 क्या हो जाएगा आपका? हमेशा मैं नॉर्मलाइज लूंगा 1 1। और दूसरा यहां क्या पुट कर दूं, 0 0 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू माइनस ए। सो 5 2 क्या हो जाएगा आपका, 1/√2 1 -1। अब आप एस मैट्रिक्स लिखना चाह रहे हो, व्हाट विल बी योर एस मैट्रिक्स बताओ? क्या लिखे, 5 1 5 2 लिखे या 5 2 5 1 लिखोगे?
बताओ, एस मैट्रिक्स क्या लिखना चाहिए? 5152 लिखोगे, है ना? क्यों अननेसेसरी पैनिक में जाना है भाई? जहां तक हो चीजों को हम सिमेट्रिक रखेंगे। -1/2 आप घर में चेक कर लेना, एस इनवर्ट्स की वैल्यू एग्जैक्टली सेम आएगी। 1/√2 1/√2 1/√2 -1/√2, you will get exactly same thing. Now s inverse s करोगे, so you will w dash diagonalize s inverse w s। बताओ तो क्या वैल्यू आएगी? एनीवन? 2v0 0 वेरी गुड, 2v0 0 0 0। तो एग्जाम में सब करने की जरूरत ही नहीं है, आइगन वैल्यू निकालो और आंसर दे दो, है ना? So what will be this final answer? You have E0 0 0 E0 plus lambda p 2v0 0 0 0, and from here you can have E0 plus lambda 2v0 E0 plus lambda p into 0. So what you have done, it's a very nice perturbation, it's a very nice perturbation। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप अगर देखोगे कि बिफोर द perturbation, if you are not going to introduce this 2 cross 2 subspace will appear you as as only one state, and that value is equal to E0। लेकिन आपने इतना ब्यूटीफुल perturbation दिया कि एक लेवल तो एग्जैक्टली सेम रह गया, दैट वैल्यू इज इक्वल टू E0, और दूसरा वैल्यू जो कि आपका शिफ्ट हो गया लैम्डा p v0 से। तो यू हैव दिस एज योर perturbation। सो ये आपके ऊपर चाहिए, ये अब perturbation कौन डिसाइड करेगा, क्या डिसाइड करेगा, ये आपकी फाइनल नीड होगी कि आप कौन सा perturbation लेना चाहते हो। क्या ये perturbation से काम चलेगा? दोनों के बीच की गैप क्या है? सॉरी 2v0 लैम्डा इंटू 2v0, दोनों के बीच की गैप क्या है? 2v0। लेकिन लास्ट वाले प्रॉब्लम में आपका जो स्टेट था, एक अप चला गया था, एक डाउन चला गया था। यहां पर है एक स्टेट वही रहा और दूसरा अप चला गया। तो आपके ऊपर है कि आपको किस तरह का सिस्टम चाहिए, किस तरह का यूज करना है, उस ढंग से आप अपना पोटेंशियल को पर्टर्ब करोगे और यूज करोगे। एक्चुअली पर्टर्बेशन का जो रियल रोल है वो डीजेनरेसी को ब्रेक करने का है। सो यू हैव टू ब्रेक डीजेनरेसी। हाँ बताओ सर, यहाँ पे बाय चांस ये 2v0 एंड 0 इसका आ गया w डैश का, जैसी लैम्डा की वैल्यूज इसकी आई हैं। नहीं भाई, ये तो हमेशा ही होगा आइगन वैल्यू इन द डायगोनल टर्म। ओके। Whenever you will diagonalize matrix, if it is diagonalizable matrix, then और डायगोनलाइजल कैसे होगा, उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, है ना? इससे आपको पता चल जाएगा। सॉरी, डिटरमिनेंट 0 नहीं, इसका तो डिटरमिनेंट 0 होगा, ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। ओके, सो वहां से आप चेक कर लो। बताओ। लैम्डा की वैल्यू तो 2v0 एंड 0 वहीं पे आ जाती है जब हम लैम्डा निकालते हैं। निकालते हैं, बिल्कुल निकालते हैं। हाँ तो उसकी वैल्यू 2v0 एंड 0 वहीं पे आ रही थी हमारी, मतलब लैम्डा की। तो के बाद 5152 निकाल के फिर हमने इसको इनवर्स एंड वो किया, फिर 2v0 एंड 0 अगर ये हमेशा ही आ रही है तो वहां से हम क्या देखो, ले सकते? आप ले सकते हो। मैं तो यही कहा ना कि एग्जाम में तो आप डायरेक्ट लिख लेना, लेकिन आप फिजिक्स कर रहे हो ना। यस। आर यू गेटिंग? फिजिक्स इस तरह से थोड़ी डेवलप होती है कि आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है कि नहीं। अप्लाई तो कर ही सकते, मतलब ये चीज है कि अप्लाई सही है। करोगे, बिल्कुल अप्लाई करोगे, 100% अप्लाई करोगे। ओके सर। ठीक है, वहां पर ठीक है इतना करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि ये अगर सेम है तभी आप ये कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके। ये अगर सेम नहीं है तो चीजें बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। ओके ओके, सर। ठीक है। यस। ये चूंकि इस दोनों में सेम है, अगर एक भी अलग हो जाता देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। क्योंकि देखो, ओके। सब स्पेस की बात होती है, एक एक यस। स्पेस दूसरे के साथ कैसे बात करता है उसकी बात होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर्चुनेटली आपको डिजेनरेसी 2x2 स्पेस में ही है और ये डायगोनलाइज है, तो इसी कारण आपका काम बहुत आसान हो रहा है और आप ट्रिवियली चीजों को सॉल्व कर रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। हाँ, अभी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाएंगे, डोंट वरी। कल की क्लास में, परसों की क्लास में आप देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि सर ने जो कर रहा था वो एक्चुअली क्या कर रहे थे हम। ओके।
ठीक आज है तो सर। ट्रिवियल है, आज तो बहुत ही ट्रिवियल ही कर रहे हैं चीजों को, सब चीज हाँ जी। पता है हमें, लेकिन मैं बार बार ये लिखने का पेन कर रहा हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये मैं पेन बार बार ले रहा हूं, क्यों ये पेन ले रहा हूं? क्योंकि इसका यूज नेक्स्ट क्लास में बहुत ही ज्यादा होगा। ओके यस सर। ओके, चलो आज के लिए इतना ही है ना। थैंक यू।